I think we'll start with this. Actually, this has been given by Bhavna, and the date of birth is 21st December 69, 11:15, and the place is Jammu. And she says that this gentleman wants to know about his job and if any changes are foreseen in the next 12 months, specifically if any promotion and move of location. He is currently based in Singapore and headquarters of his company is in the Netherlands. So I hope Bhavna, this is correct details. हाँ जी सही है अंकल. Yeah, so this is the horoscope and let us see what the horoscope says actually. And we will start with the degrees of the planet. So you can see the degrees here. So degrees are almost okay, no problem. Then if you see the Rashmi Kiran, that is 36.68, that is also very good. And if you see the Shadbal here, Shadbal shows that sun, moon are very strong, all planet, but except you see this Saturn. Saturn is how much? 3.6 actually. So only the Saturn, if you see, Saturn is a weak planet in this case. Otherwise, most of the planets are well placed. They are quite strong, except Saturn. So what does it mean if the Saturn is a weak planet? Lagan Lord is weak and debilitated also. Anyway, let's start with this good and the bad points. What are the good points in this horoscope? Moon exalted, Sun, Mercury. Moon in is 11th. exalted. Very good. Moon is exalted and is well placed. Then Sun and Mercury, Buddha Aditya Yog. Sun and Mercury, they are forming this Buddha Aditya Yoga here. Right. 9th का Lord 10th में है. 9th Lord in the 10th house. It's a really wonderful position. Lord of 9th And- in the 10th house. 10th का Saturn Lord is Tenth भी का first in house में है. Lagan. Pardon? 10th Lord is in Lagan. 10th Lord is in the Lagan. That is again a very powerful yoga as far as profession is concerned. The 7th Lord is also Saturn is intense. aspecting its own house. Which one? Saturn is aspecting its own house. Saturn is aspecting 12th its house. own sign. This is this sign. Saturn is aspecting this sign actually. Very 12th correct. का कारक भी है Saturn. Yeah, Saturn is the Karaka for the 12th house also. Lagan Lord is in 3rd house. What else? Upachya अभी देखिए the number of other points also. Jupiter is aspecting Lagna. Jupiter is aspecting Lagna. Jupiter is well placed in the 9th house because और सर of 11th का लॉर्ड होके 9th में बैठा है. 11th Lord in the 9th. What does it mean? भाग्य में वृद्धि. Again in luck. And it also Income from foreign. it also indicates income from abroad actually. What else? इसमें सैटर्न की क्या पोजीशन सर है? परिवर्तन योग भी है सैटर्न और मार्स का. Right. This is the exchange of Mars and Saturn. Lord of first house and the 3rd house. They are exchanging these two. First house and the 3rd house. Mars is here, it's the Lord of 3rd house, and Saturn is here, which is the Lord of Lagna. तो इसका implication क्या होगा? Any exchange makes a Raj Yoga. It gives you a good position actually. सर एक्सचेंज में डेविएशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं, debilitation is of Saturn. So let us see whether debilitation is cancelled or not. क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है सैटर्न और मार्स का, तो क्या डेविएशन कैंसिल रहेगा? कैसे होता है debilitation cancel? नहीं हो रहा यहाँ debilitation cancel. I told you few conditions by which this debilitation gets cancelled and it results into a Raj Yoga. But यहाँ पर Saturn का debilitation cancel हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर नहीं हो रहा.
सर हो रहा है क्योंकि मार्स देख रहे हैं। हो रहा है, मार्स मार्स कहाँ देख केंद्र रहे में हैं? बैठा है ना। मार्स के मार्स हाउस में का- है, मार्स उसको आस्पेक्ट नहीं कर रहा। बताइए हो रहा है नहीं हो रहा? सब मार्स मार्स ना मार्स एक ऑस्पेक्ट कर रहा है, ना ही वीनस इसके केंद्र का लॉर्ड एग्जॉल्टेड होके लॉर्ड केंद्र भी में बैठा ऑस्पेक्ट है। नहीं कर रहा। देखिए उसमें एक कंडीशन थी, द लॉर्ड ऑफ इट्स डेबिलिटेशन साइन and lord of its exaltation sign. और इन केंद्र ओके। If they are in the mutual kendras, then this debilitation gets cancelled. यहाँ मार्स एंड पर वीनस। तो हो Saturn का जाएगा। जो साइन डिस्पोजिटर है मार्स है और लॉर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन साइन इज वीनस. Venus, it is also in Kendra. So both are in mutual kendra, so that's why this debilitation gets cancelled. Okay. वीनस अपने घर को देख रहा है। One question on that, uncle. जी. If Saturn is here in this case placed in the house of the Lagna Lord, uska kya Saturn is- implication? Saturn is placed in the third house. Hanji, and that's ruled by Mars, right? That Yeah, house. and they are exchanging actually. So this becomes, third house becomes very strong. Third house becomes very strong. Third house means ki the person has a lot of initiative, a lot of willpower, a lot of determination, and he behaves like an experienced person. Such type of people, they always behave like an experienced person. So they are good from that point of view. Got it. Second house is hammed between two malefic planets. All malefics are associated with the second house because this and this is hammed between malefic planets. But Venus sir, is the Lord of second house is in the Trikon house. Lord of. Lord of second house is sitting in the 9th house. That is in the 9th house, but it is 8th from its own position. Okay. But it is 8th from its own position. So that is also, as far as this house is concerned, Money is concerned. may not be good position, and this is hammed also. Anyway, then Venus is Yog Karak. Yes. Lord of Yes. Trikon and Sir, Saturn. सर तो इसमें चंद्रादि योग भी बन रहा है। हाँ, तो Venus is Yog Karak, so Venus is becomes very strong क्योंकि 9th का लॉर्ड 10th हाउस में योग कारक भी है और 10th हाउस में प्लेस्ड भी है, तो Venus सर becomes फोर्थ हाउस को ऑस्पेक्ट भी कर रहा है अपने साइन को। वही कह रहे हैं कि चंद्राधि योग बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि मरकरी यहाँ देख रहा है, वीनस यहाँ पर देख रहा है और जुपिटर इधर देख रहा है. So all three benefic planet, they have an association with the moon. So moon becomes very, very strong actually. You see the position of the planet. Moon becomes such a strong planet. और अभी हमने इसका moon का षटबल भी देखा, तो षटबल is also very high. Sorry, it is 9.1. Yes. So moon षटबल is very high actually. Exalted And भी है। exalted भी है, और तीसरा ये है कि सारे प्लैनेट जो बेनिफिक प्लैनेट है उनके साथ उसका एसोसिएशन भी है. और दूसरा अगर हम ये भी कहें कि जो 6th हाउस का लॉर्ड है मून, मून जो 6th हाउस का लॉर्ड है, दैट इज एसोसिएटेड विद द 10th हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन. और जैसा हम लोगों ने कहा था कि 6th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम profession point of view because this is the 9th from the 10th house. This is your fortune in the profession. तो उसका एसोसिएशन हो रहा है. मून जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है, so that is associated with the 10th house also. So it means you are fortunate in the profession also, right? And now let's talk about the sun chart also. The sun chart यहाँ पर है, या इसको यहीं बना देते हैं 1 मिनट के लिए. Let us see. This is the Dashan chart here. Dashan chart में to have a good foundation of profession, so there were two conditions. The Lagna should be strong and sun should be well placed. Lagna should be strong and sun should be well placed.
तो लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर इसमें एक्सचेंज होता है क्या दशमांश नहीं में? नहीं, एक्सचेंज हम इसमें नहीं देखते डिविजनल चार्ट में. Jupiter is aspecting Lagan. Venus is placed in the Lagna and Jupiter has an aspect on Lagna. And Mars Sir- is the Lord, which is placed in the second house. So Lagna is strong. What about Sun? सर लेकिन isn't इसमें it जो लग्न 10th है house. वो Pardon? हेम्स बिटवीन मेलेफिक्स नहीं होगा. नहीं, but it is associated with all benefic also. ये मत भूलिए कि Venus and Jupiter का association है. ओके ठीक है जी. राइट. And Sun is well placed. 10th If you house. see that Sun is well placed in the 10th house. So it indicates good status in the profession. Person will get a very good status in the profession also. जी. Jupiter is aspecting 10th lord. हाँ, Jupiter is aspecting 10th lord, 10th which is Saturn in this Saturn. case. Or sir, Saturn is the Karak of the 10th house also? हाँ, of course, Saturn is the Karaka of the 10th house also. And Mercury is also the Karak and it is also aspecting the 10th house? नहीं, दशांश में ये चीज हम नहीं देखेंगे because दशांश चार्ट हमने देखा था कि we use a different way of looking into the दशांश chart. Okay. All these things are not applicable. Those things we Okay. see only from the Lagna chart. Fine. But we do see the aspects in the Shanshankal. Aspect, etc. We will see aspect and the house in which the planet is placed. But all those things like Karka, then yogas and other things we don't see actually. And now you see the Dasha. Sorry, Dasha. Dasha is what? The running period of Jupiter Rahu. Rahu. Jupiter Rahu. And this will be over on 26th this December year. 21. And then you have a Dasha of Saturn. Saturn. Sorry. How this? The Dasha of Saturn is starting from 26th December and it will continue for 19 years. So question is ki what will be the result of Saturn period? That is more important in this case now. Because Dasha of Saturn is starting now. So how the Saturn will give the result in this particular case? हाँ तो सैटर्न तो अच्छे रिजल्ट देगा इसमें क्योंकि लग्नेश है. Yeah, and sir, राजयोग भी बना रहा है और दशमांश में 10th house का लॉर्ड भी है. और दशमांश में थर्ड हाउस में ही बैठा है. सबसे वीक है और डेबिलिटेटेड भी है. लेकिन थोड़ा वीक है, उसे थोड़ा सा पावर देनी पड़ेगी. देखिए पहली चीज तो सैटर्न भाग्य स्थान को देख रहा है और 9th का लॉर्ड 10th में बैठा है. कहां पर? सर लग्न चार्ट में. हाँ, लग्न चार्ट तो हमने देख लिया. That we have already seen actually. Lagna chart is really good actually, and even the Dasha chart is quite good. So, but we want to know because this person is starting the Dasha of Saturn now. So, what will be the result of Saturn Dasha for this particular person? हाँ सर, ये बोलते हैं कि जिस भी प्लेनेट की दशा चलती है उसमें उस प्लेनेट का जब अंतर आता है हाँ तो वो न्यूट्रल रहता है, ना वो बेनिफिक रहता है ना वो मेलेफिक रहता है. ऐसा कुछ है क्या? देखिए पहली चीज तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट अबाउट सैटर्न दशा, और मानसागरी जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ भी है कि जुपिटर के बाद जब सैटर्न का पीरियड शुरू होता है तो सैटर्न की पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन जो फर्स्ट सैटर्न का सब पीरियड होता है वो अच्छा नहीं होता. और उसमें वो श्लोक भी है, क्या है, बंधुदार सुतार्था नाम नाशम व पीर्णम भवेत विदेश गमनम दुखम सौरे स्वांतर संस्थिते. मतलब हर तरह से प्रॉब्लम होती है क्योंकि सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो. तो वो उसका नेचर है, वो प्लैनेट अपनी प्रॉब्लम देता ही है. और दूसरा ये है कि जुपिटर के बाद
सैटर्न का पीरियड शुरू होता है, जुपिटर का पीरियड अच्छा ही रहा मान लीजिए, तो सैटर्न तो नेचुरली इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट। तो आपको हर तरह से प्रॉब्लम नजर आने लगती है कि कुछ ना कुछ लाइफ में, जैसे कि इसमें कहते हैं कि बंधु उदार सुतार तनाव, घर से आप दूर हो जाते हैं, अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, कहीं मन नहीं लगता आपका। तो वो लिखा हुआ है कि जब सैटर्न का पीरियड शुरू होता है तो उस टाइप की प्रॉब्लम होती है। और पर्टिकुलरली जब ये सैटर्न का जो सब पीरियड होगा, ये वाला 18 जून 22 तक, 6 जो महीने। हाँ, ये जो 6-7 महीने हैं, तो इससे इंडिकेशन पहली चीज तो ये मिलती है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी से जून के बीच में देयर विल बी चेंज इन द प्रोफेशन, दैट इज डेफिनेट कि नेक्स्ट ईयर के शुरू में प्रोफेशन में चेंज होगा, पहली चीज। दूसरा यह है कि सैटर्न का, जैसे मैंने कहा कि नेचर ही है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने की, और पर्टिकुलरली जो पहली जो सब पीरियड एंड सब पीरियड है, उसमें आपको घर से दूर करता है। तो घर से दूर करने का मतलब ये हुआ कि पोस्टिंग इन सम अदर कंट्री, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन द सिंगापुर, तो चांसेस हैं कि पोस्टिंग किसी और कंट्री में होगा। थर्ड यह है कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम दशांश चार्ट को देखें तो दशांश चार्ट में दिस इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, दिस इज लॉर्ड ऑफ 10th हाउस यहाँ पर। और ये हम लोगों ने कहा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स as far as D10 chart is concerned, the planet placed in the 10th house. The sun becomes the most important planet from profession point of view. And next is the lord of this house, which is Saturn. And Saturn is well placed. It is an aspect of Jupiter also. It is an aspect of Jupiter also. तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ प्रमोशन वगैरह होगा, और प्रमोशन होने की वजह से आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा, और उससे जो है वो फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, फैमिली में हो, थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो, तो परेशानी भी काफी उसमें होगी उस पीरियड में जो है। बट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। और दूसरा रीजन ये भी है कि शनि वीक प्लैनेट है, जैसा आपने शेड्यूल देखा कि वीक प्लैनेट है, और भले उसका डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा हो, लेकिन जो नेचर है जो शनि का, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करने का ही है, परेशानियां क्रिएट करने का ही है, और वो भी लग्न का लॉर्ड है। तो नेचुरली जैसे फैमिली से अलग होना, हेल्थ को खराब करना, टेंशन को बढ़ाना, तो वो एंड मे बी द एक्सेस ऑफ द वर्कलोड आल्सो, वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है। बट चांसेस तो ये हैं ही पूरे के पूरे कि जैसे ही ये सैटर्न की दशा शुरू होगी, उस पीरियड में प्रमोशन भी होगा एंड चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, और प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो लाइफ में टेंशन भी काफी बढ़ेंगे। और वैसे भी अगर आप यहाँ देखें कि जुपिटर विल कम हियर ऑन 6th अप्रैल, इस साइन में आ जाएगा, तो नेचुरली इट विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन 5th and 9th हाउस आल्सो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जुपिटर का ट्रांजिट का रिजल्ट है वो अच्छा ही होगा, जहां तक प्रमोशन का सवाल है। So this is indicated, Bhavna. Any other thing you want to know? Just clarifying, uncle, कि ये जो टेंशन बढ़ेंगे the beginning of the Saturn महादशा, जी, इस अंतरदशा में फिर थोड़ा सेटल होगा ये? देखिए, मेन टेंशन इज ड्यूरिंग दिस पीरियड, फर्स्ट 6 months यू कैन से, उसमें काफी उथल पुथल होगा, और उथल पुथल होने से आपको लगेगा कि जैसे बहुत सारा कुछ नेगेटिव चेंज हो रहा है लाइफ में। एंड अंकल, हाँ, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है इनकी सिचुएशन, बिकॉज दिस 6th हाउस इज वेरी स्ट्रांग। हाँ, देखिए, हेल्थ का कोई ऐसा बहुत सीरियस इशू नहीं है। वैसे भी सैटर्न का आपने देखा कि जुपिटर का एस्पेक्ट भी है उसके ऊपर, तो ऐसा कोई सीरियस इशू नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो सैटर्न का जो नेचर है ना कि छोटी मोटी प्रॉब्लम देना, और वो तो देगा ही। अब नवांश भी एक बार देख लेते हैं, फिर वो नवांश नहीं देखा हम लोगों ने। राइट कॉर्नर, ये नवांश है आपका, लगन तो स्ट्रांग है, और नवांश में भी जो, हाँ, नेचुरली लग्न इज वेरी स्ट्रांग, एंड इन नवांश हाउस तो सैटर्न इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। नवांश में भी जो है
सैटर्न को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। और वो जो प्रॉब्लम है, खाली एक तो यहाँ पर षटबल काफी कम है। आपका शनि का आप देखेंगे कि षटबल काफी कम है, बट उसका जो नीच भंग हो रहा है, जुपिटर का एस्पेक्ट है हर जगह उसके ऊपर, तो दैट इज मेकिंग दैट सैटर्न स्ट्रॉन्ग। और हम ये कहेंगे कि जो प्रॉब्लम होंगी भी तो विद इन लिमिट ही होंगी, ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी तंग तो करेगा ही, क्योंकि वो सैटर्न का बेसिक नेचर है। Right. And separation probably from family. Naturally, separation from the family. So here, as Saturn period will come and the Saturn is weak, so can we recommend blue sapphire in this case? लग्न को देखिए, हाँ, it's a lord of lagna. So, But it's also the lord of 12th house also. That's why I'm feeling confused here. it's a lord of 12th सर house. वो डेबिलिटेड भी है। हाँ, but even then हम लोग, वो तो नीच भंग हो रहा है, डेबिलिटेशन तो हम मायने नहीं रखता, क्योंकि वो नीच भंग हो रहा है उसका, वो तो राजयोग कारक हो गया है। और लग्न का लॉर्ड का स्टोन हम हमेशा पहन सकते हैं, इवन इफ इट इज अ लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस आल्सो। तो लग्न का लॉर्ड है तो ब्लू सफायर पहना जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ कर सकते हैं सैटर्न को स्ट्रांग रखने के लिए अंकल? पूजा करिए, शनि के मंत्रों का जाप करिए, हनुमान जी की पूजा करिए। Got it. तो ठीक है अंकल। लोकेशन चेंज का likelihood है अंकल, because I guess the question is, will he go back to the US or to Amsterdam, which is the headquarter? That was another, the location change. मुझे लग रहा है कि यूएस जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट चांसेस आर कि नीदरलैंड एक्चुअली। नेदरलैंड्स, वो आपने कैसे इन्फर किया अंकल? क्योंकि परेशानियां भी तो काफी होनी है ना बीच में, थोड़ी सी। सैटर्न का जो मेन स्टेटस भी देता है, साथ में प्रॉब्लम भी देता है एक्चुअली। So that will not be according to your wishes. So one question, when we have discussed about the foreign settlement, तो उसमें we have seen that 4th house should be afflicted. तो but यहाँ 4th house तो काफी strong है, मतलब moon is exalted, Venus is aspecting its own sign, just there is aspect of Mars. So, but overall, it's a good and positive. So, how it's possible the foreign settlement, as the person is already foreign, is in foreign. आप ये देखिए कि जो 4th हाउस है उसके साथ कितने मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। 4th house, only Mars. Only Mars. Only Mars. मार्स तो एस्पेक्ट कर ही रहा है इसको। सैटर्न यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर है, राहु यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है, सन यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है, केतु भी कर रहा है। तो इट हैज एसोसिएशन ऑफ ऑल मैलेफिक्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि एफ्लिक्टेड नहीं है इस द मैलेफिक प्लैनेट। और जब हम फॉरेन की बात करते हैं तो 9th हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि 9th हाउस की क्या पोजीशन है। 9th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड पर्टिकुलरली जब हम फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं तो 12th हाउस शुड आल्सो बी गुड एक्चुअली। तो 12th हाउस को ये इसका जो कारक है वो एस्पेक्ट कर रहा है इसको। तो एफ्लिक्शन तो है 9th with the 4th हाउस के ऊपर, सारे मैलेफिक प्लैनेट का वो तो है। बिना उसके तो आप जा ही नहीं सकते फॉरेन में जब तक 4th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं होगा। ओके। घर से बाहर जाने के लिए घर का सुख तो खत्म होना है ना। Correct. Thank you, uncle. Yeah. No other question? No other question. Okay then. This is, I think, sent by Baljit, 10th January 94, 1352, Delhi. यही है बलजीत? Baljit is not there? Anyway, so she wants to know about profession and marriage. Sorry sir, sir 14th वाला पहले डिस्कस कर लें। 14th क्या? ये जो इसका नेक्स्ट है, जो ये दोनों ही मैंने भेजे हुए हैं। Yeah. This one. Yeah.
So this is 22nd February 1995, 12:05 or Delhi. And you want to know about profession and marriage. यस सर. Marriage अभी गज नहीं, केसरी हो गया इसमें तो. marriage अभी नहीं हुई है ना इसकी. सर बात चल रही है, आज शायद कोई आ रहे हैं इसीलिए पूछना था कि गर्ल है बॉय है? Boy. बॉय. ओके. चलिए पहले एक बार देख लेते हैं और उसको क्या है उसके बाद. See this longitude. Longitude is, I think, all planets are well placed. और इसमें Saturn को combust भी दिखाया, but it is not combust actually. Difference करीब 10 डिग्री का है, तो हम नहीं कहेंगे combust है उसको जो है. रश्मि किरण is 14.72, बहुत ज्यादा नहीं है. और अगर हम इनको देखें strength of the planet, तो sun is very strong, moon is okay, Mars ठीक है, this is okay, this is okay, most of the सभी planets अच्छे are हैं. okay. ठीक है, मतलब sun तो है strong, बाकी normal है सारे planet जो है. अब let's talk कि what are the positive and negative points in this horoscope. Positive points क्या हैं? Jupiter is aspecting सर Lord. गज केसरी हो गया एक तो इनका. चलिए आपकी बात मान ली, गज केसरी योग है यहाँ पर. मून एंड जुपिटर. राहु केतु की अच्छी प्लेसमेंट है. राहु इन 6th एंड केतु इन 12th मोक्ष कारक होता है. बिल्कुल राइट. और 9th का सस लॉर्ड 10th महापुरुष में योग है. बन रहा है इनका. कौन सा? सस महापुरुष. महापुरुष. सस महापुरुष योग, सैटर्न बना रहा है. क्योंकि सैटर्न इज इन द केंद्र इन इट्स ओन साइन एक्चुअली. तो जुपिटर अपने साइन को देख रहा है सर, 11th हाउस को. 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है सर, सन की प्लेसमेंट है. और सर 9वें का लॉर्ड 10वें में है. राजेश जी ढंग से देखिए एक बार. सैटर्न जोक करो. डोंट कम टू द कंक्लूजन लाइक दिस. सन जो है 10वें में बैठा है सर. और भी तो लेकिन देखिए सन ना और क्या. सैटर्न इकट्ठे. हाँ सैटर्न साथ है. सैटर्न सर साथ. मून दोनों एंड साथ मार्स तो का दुश्मन एक्सचेंज है. 10th हाउस मून में डेबिलिटेटेड है सर. कितने मार्स के मैलेफिक. साथ मून एक्सचेंज और हो गया ना. मार्स दोनों रेवलेशन डेबिलिटेड है. कैंसिल हो गया. एक मिनट. इसके 10th हाउस के ऊपर कितने मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है? मार्स का है, सैटर्न है, सन है, राहु राहु का है. भी है सर. राहु है. और ऑल क्या चाहिए? मेलेफिक्स. It is afflicted with all malefic planets. सर इवन इफ अगर सन और सैटर्न इकट्ठे किसी हाउस में हो, तो ऐसा होता है क्या कि वो उस हाउस को डिस्ट्रॉय करते हैं? देखिए सन सैटर्न नेचुरली दे आर टू मैलेफिक प्लैनेट्स, और ये Right, दोनों sir. प्लैनेट सेपरेटिंग सेपरेटिंग टेंडेंसी वाले टेंडेंसी के हैं, होते हैं. तो Right, खराब sir. तो करते ही हैं. और जब सन सैटर्न पर्टिकुलरली जब 10th हाउस में होते हैं या हाउस ऑफ प्रोफेशन से उसका एसोसिएशन होता है, तो प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होती है बॉसेस वगैरह के साथ जो है. सर इन केस अगर ये साइन लिब्रा में होते, सपोज कि सैटर्न एक्सॉल्टेड है और सन का नीच भंग हो रहा है, तो तब भी इतना ही बुरा रिजल्ट देते. नेचुरली अगर एफ्लिक्टेड है विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट्स, कोई भी हाउस अगर चारों मैलेफिक प्लैनेट के साथ एफ्लिक्टेड है और उसके ऊपर एक भी प्लैनेट का कोई बेनिफिक एसोसिएशन तो है नहीं यहाँ पर. राइट सर. एक भी प्लैनेट का. सैटर्न इज वेरी इट्स गुड एक्चुअली बिकॉज योग कारक भी है, 9th का लॉर्ड 10th हाउस में भी है, सब चीजें ठीक है. लेकिन साथ में जब चारों मैलेफिक प्लैनेट का एफ्लिक्शन हो गया, तो वो तो डैमेजिंग हो गया ना हाउस, वो उतना अच्छा नहीं रहा फिर. सर लेकिन अगर सपोज किसी हॉरोस्कोप में सन सैटर्न लिब्रा में किसी हाउस में है, लेकिन मेलेफिक का एसोसिएशन नहीं है, तो उसको हम कैसे, तब भी वो सेपरेटिंग टेंडेंसीज देंगे? नेचुरली वो तो होगा तब भी. हाँ नेचर ही है कि सेपरेटिंग टेंडेंसी तो देते ही हैं. और यहाँ पर मार्स 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो चारों प्लैनेट जो हैं सन सैटर्न राहु एंड मार्स, वो चारों सेपरेटिंग टेंडेंसी वाले प्लैनेट हैं जो 10th हाउस को वीक करते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं करते यहाँ पर. और भी देखिए सर मून एंड मार्स आर एक्सचेंजिंग. मून और मार्स का एक्सचेंज है. राइट. मून और लेकिन मार्स का सर दोनों डेबिलिटेड है. हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा. मून का देखिए पहले, मून का डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा. मून का पहले ये Sir, it is aspecting its own house.
वो इट्स एस्पेक्टिंग इट्स साइन डिपॉजिट, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। मून का डेबिलिटेशन कोई रूल उसमें एप्लीकेबल है या नहीं है? सर नहीं है, मून का सर नहीं डेबिलिटेशन है, कैंसिल नहीं हो रहा नहीं है। है, मून का डेबिलिटेशन कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर मार्स का देखिए। मार्स का हो रहा है सर, क्योंकि वो मून वृष राशि में एग्जॉल्टेड रहता है। कैप्रिकॉर्न में मार्स एक्सॉल्टेड होते हैं। एंड मून 1 2 3 हो रहा है सर। कैसे? मून एंड सैटर्न आर इन केंद्र, म्यूचुअल केंद्र। मून एंड सैटर्न दे आर इन द म्यूचुअल केंद्र, क्योंकि साइन डिस्पोजिटर एंड द साइन डिस्पोजिटर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन व्हिच इज सैटर्न एंड इट्स साइन डिस्पोजिटर इज मून। So moon and Saturn, they are in the mutual kendras, so that's why this debilitation gets cancelled also. Mars का, लेकिन moon का जो debilitation है वो cancel नहीं हो रहा है। सर प्लीज ये बता दीजिए कि मार्स का और सैटर्न का कैसे कैंसिल हो रहा है? मार्स का जो साइन डिस्पोजिटर है इसका, that is moon, ओके and sign dispositor of its exaltation sign. Okay, Exaltation we are sign is looking for Moon and Saturn now. Moon and Saturn. So Moon and Saturn, they are in the mutual kendra. So that's why Okay. this debilitation is getting cancelled. Okay. और बताइए। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है। Yes, sir. Fifth lord in the ninth house is a very strong position. Ninth lord in the 10th house. Saturn योग कारक भी है और सस महापुरुष भी बना रहा है। या और जुपिटर अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर। सर सन भी अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। सन भी अपने Sun साइन is को strong. सन भी अपने साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। सर यहाँ पे जैसे लगन लॉर्ड जो है वीनस, वो गया है 8th हाउस में, तो उससे क्या नेगेटिविटी हम इंटरप्रेट करेंगे, क्या नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे उससे? ये लगन अवयोग बन गया इन द नाइन्थ हाउस वीक हो इन जाता है 8th थोड़ा। हाउस यू कैन ओनली से कि इट बिकम्स अ वीक प्लैनेट थोड़ा सा, जो रिजल्ट सर अगर उससे कई अगर मतलब उसको अपना जीविका पार्जन में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। मींस किसमें ऑब्स्टेकल्स वुड बी देयर इन लाइफ। नहीं, देखिए फर्स्ट हाउस इज व्हाट, फर्स्ट बॉडी, हाउस इज योर बॉडी, योर कैपेबिलिटी, योर हेल्थ, योर नेचर, टेम्परामेंट, ऑल दोस थिंग्स। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होगी ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाँ जी, बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ऐसे हाँ इंटरप्रेट करेंगे मतलब इसको। थोड़ा वीक हो जाता है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बट जुपिटर भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है लग्न को, दैट इज अ पॉजिटिव हाँ। पॉइंट एक्चुअली। हाँ सर, विपरीत राजयोग भी बन रहा है, 6 का लॉर्ड 8th में। नहीं, उससे विपरीत राजयोग नहीं बनता, 6 का लॉर्ड 8th होने, दैट इज अ गुड पोजीशन दोनों ऑफ को होना चाहिए। 6th हाउस, बट इन दोनों के लॉर्ड 6 8 12 के दो के कम से कम लॉर्ड कंबाइंड होने चाहिए किसी हाउस में, तो वो नहीं है। सर इधर जैसे लॉगन लॉर्ड 8th में चला गया, इससे तो थोड़ा सा ये होगा ना, थोड़ा वीक हो जाता है लग्न, बट ठीक है, इट्स नॉट ए बैड पोजीशन। एंड इसके दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट भी हैं, हाँ इधर मरकरी मून है, है, इधर हाँ, जुपिटर है, इट इज बिटवीन टू बेनिफिक प्लैनेट, तो ये तो स्ट्रांग बना रहा है, उसको खराब नहीं कर रहा है एक्चुअली। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जी। क्या 6 8 12 के अलावा हम 3rd हाउस को भी गिनते हैं विपरीत राजयोग के बनाने में? कैसे? नहीं नहीं, नहीं। थर्ड को नहीं देखते एक्चुअली में। 3rd को नहीं, क्योंकि मैं एक बुक में पढ़ रही थी तो उसमें 3rd भी आ रहा था। हाँ, कुछ लोग 3 6 8 12 को मान लेते हैं त्रिक हाउस, बट नॉर्मली नॉट। सर अगर ऑपोजिट हो कि 8th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा हो तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 8th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है अगर हाँ, ascendant तो लग्न को वीक कर रहा है, ओके ओके सर। वो तो 8th हाउस का लॉर्ड जहां भी बैठेगा उसको वीक करेगा, और जिस हाउस का भी लॉर्ड 8th हाउस में जाएगा उस हाउस को वीक करेगा, बट क्योंकि लग्न है, लग्न इन इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर लग्न को जुपिटर भी देख ही रहा है। लेकिन Okay, सर sir. जुपिटर जो है वो तो 8th हाउस का लॉर्ड है। हैं जी,
जुपिटर तो 8th हाउस का लॉर्ड है, तो सर कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 11th का भी लॉर्ड है ऐसे तो। अच्छा बट सर यहाँ पर हम देखेंगे कि जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, उसका एस्पेक्ट है। ओके Uncle, the Lagna Lord, when the Lagna Lord goes into the 8th house, उसका क्या interpretation आपने बताया? It makes the Lagna weak actually. The planet become a weak planet. Understood. थोड़ा सा वीक हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी जैसे यहाँ जुपिटर 8th और 11th का लॉर्ड है, जी। और अगर ये जुपिटर मतलब 11th में बैठ जाए तब क्या रिजल्ट देगा? 11th का अपने साइन में बैठ गया तो 11th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगा काफी। नहीं, 8th का भी लॉर्ड है तो उसके इफेक्ट आएंगे। हाँ 8th के भी आएंगे, बट 8th भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हाउस है, हर एंगल से खराब ही नहीं है। क्योंकि द हाउस एंड द लॉर्ड इन द हाउस ऑल आर एस्पेक्टेड विद गुड प्लैनेट्स। हाँ अच्छा, दूसरा ये है कि जुपिटर की क्या पोजीशन है यहाँ पर इन द 7th हाउस? सर अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा नहीं माना जाता उसको, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर जब भी प्लेस्ड होता है तो वो वीक पोजीशन हो जाती है उसकी। और सेकेंडली सर 8th का लॉर्ड है तो और परेशान करेगा। हाँ 8th का लॉर्ड 7th में वो भी खराब है, लेकिन वैसे भी जुपिटर 8th 7th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है उसकी, जुपिटर की जो है। शादी के लिए और ज्यादा। 5th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? 5th का लॉर्ड 9th में और उससे एस्पेक्ट मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। नहीं मार्स तो नहीं कर रहा सर। कोई भी प्लैनेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लॉर्ड को कर रहा है मार्स। मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है ना। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सन और सैटर्न का एस्पेक्ट है। इस हाउस के इसमें ऊपर राहु भी है। इस हाउस के मार्स और ऊपर राहु। मार्स और राहु का एस्पेक्ट है। तो 5th हाउस को ये लॉर्ड तो इसका अच्छा है, इट इज इन द 9th हाउस, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ्लिक्शन भी 5th हाउस के ऊपर बहुत है। 5th हाउस के ऊपर एफ्लिक्शन भी बहुत है। अब जो दशा ऑपरेट हो रही है वो मरकरी, पहले नवांश चार्ट तो देख लें एक बार। दिस इज द नवांश चार्ट। सर इसमें जैसे 7th हाउस में डेबिलिटेटेड मून है, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि स्पाउस के रिस्पेक्ट में कुछ ओवर इमोशनल स्पाउस या देखिए मून है यहाँ पर और सैटर्न भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है। राइट सर, सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो नेचुरली जो मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है किसी की भी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, और पर्सन इज ऑलवेज अंडर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। दिस इज फॉर द स्पाउस सर, स्पाउस नॉट के फॉर द लिए, स्पाउस, अपने लिए। अपने लिए। ओके सर, ओके सर। तो सर इनके इसमें सर इनकी डिप्रेशन टेंडेंसी हो जाएगी? नहीं डिप्रेसिव टेंडेंसी क्यों होंगी, बाकी प्लैनेट भी तो अच्छे हैं ना काफी, बट ये है कि अंडर टेंशन भी है साथ में रहेगा, साथ में जो है टेंशन तो रहेगा। मार्स तो लॉर्ड है ही इसका। हाँ मार्स तो अच्छी पोजीशन में है, वो 5वें स्थान में है, अपने से 9th पोजीशन में है, तो मार्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्स को जुपिटर भी देख रहा है और मरकरी भी देख रहा है, दोनों प्लैनेट देख रहे हैं। अब दशा चल रही है, मरकरी एंड राहु का पीरियड चल रहा है, मरकरी एंड राहु। और नवांश चार्ट में हमने देखा कि इसको यही ये नवांश चार्ट है, तो मरकरी अपने से 12th हो गया सर। लग्न लॉर्ड इज इन द मरकरी, सॉरी इन द 12th हाउस, और उसके ऊपर मार्स का भी एस्पेक्ट है, सैटर्न का जुपिटर वर्गोत्तम हो गया है सर। सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। जुपिटर वर्गोत्तम कहाँ हो गया? नहीं वर्गोत्तम नहीं हुआ, नहीं उसमें 8th में है राशि जो। अच्छा हाँ 8th में। तो यहाँ पर जो लग्न का लॉर्ड है वो वीक है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस में भी है और सैटर्न मार्स का उसके ऊपर एस्पेक्ट भी है। जुपिटर देख रहा है लगन को।
हाँ, जा झाड़ू मार लेना उधर, अब हो गया आज, सामने सामने पोज देना। हाँ, और इवन इफ वी सी द 7th हाउस, जो जुपिटर है यहाँ पर, जुपिटर को कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं? सन के साथ तो है ही है, सैटर्न उसको एस्पेक्ट कर रहा है और केतु भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर भी एक वीक प्लैनेट बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि वहां भी 7th हाउस में प्लेसमेंट है लग्न चार्ट में, और यहाँ इधर जो भी है 7th वो house एफ्लिक्टेड है विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट्स। तो यहाँ पे भी 7th हाउस में, हाँ, और एफ्लिक्टेड भी है, सन है, सैटर्न है और केतु के साथ केतु। एफ्लिक्टेड है, और लग्न का लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड है विद मार्स एंड सैटर्न एक्चुअली। तो ये इंडिकेट नहीं करता कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ये इंडिकेट करता है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगी। और दशा जो इस समय चल रही है कि मरकरी राहु की क्या पोजीशन है, और ट्रांजिट अगर हम देखें तो यहाँ पर जुपिटर का भी ट्रांजिट हो रहा है और सैटर्न का भी ट्रांजिट हो रहा है। और जो आज की डेट में अगर हम देखें तो ये सैटर्न, मरकरी राहु सैटर्न का पीरियड चल रहा है, मरकरी राहु और सैटर्न का पीरियड चल रहा है। मरकरी राहु और सैटर्न का, और ट्रांजिट यहाँ पर अच्छा है। तो बलजीत जी डिसाइड तो हो जाएगा आज हरीश का। हेलो हेलो। हाँ, तो डिसाइड होने के चांसेस तो हैं पूरे इस समय। मतलब कोई फ्रेंड है, उसकी क्लासमेट रही है, पर ये लड़का कह रहे कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अभी, तो जॉब भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है अभी। और लड़की शी इज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। अच्छा। और इनकी फैमिली को सर गज केसरी योग है, इनके स्पाउस के खाने में तो हो सकता है हो भी जाए। हाँ, चांसेस तो लगते हैं, बट प्रोफेशन का जहां तक मामला है, ये 10th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है। सब कुछ है ठीक होने के बावजूद भी जो 10th हाउस की पोजीशन है बहुत खराब है। बिजनेस वगैरह करेगा ये? हाँ जी, बिजनेस कर सकता है, अब्रॉड जाके जॉब कर सकता है? अब्रॉड जाने की पॉसिबिलिटी है, बट कहीं भी पोजीशन तो बहुत अच्छी नहीं होगी प्रोफेशनली, क्योंकि इतने ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है कि। सर अब्रॉड जाने की कैसे है पॉसिबिलिटी? देखिए, मैंने कहा कि पहली चीज तो 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, राइट। 4th हाउस एफ्लिक्टेड है। और अगर हम इसको भी देखें 12th हाउस को, तो 12th हाउस में जो लॉर्ड है मंगल, उसका प्लेसमेंट ठीक है, और उसको जुपिटर भी देख रहा है, तो 12th हाउस भी अच्छा होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है ऐसे लोगों की कि फॉरेन चले जाते हैं, वहां जाके सेटल हो जाते हैं। ओके सर। सर आप कैसे कह रहे हैं कि आज बात बन सकती है? क्योंकि जो ट्रांजिट है ना इसका जुपिटर का और शनि का, जी, द ट्रांजिट इज वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। ओके। और इस समय जो सब पीरियड भी चल रहा है वो सैटर्न का चल रहा है जी, और सैटर्न ऐसा प्लैनेट है कि वो डिसीजन करा ही देता है कुछ ना कुछ। ओके ओके। उसकी पॉसिबिलिटी भी काफी होती है एक्चुअली में। इंटरकास्ट मैरिज है, पता नहीं, मतलब ये सब कंफ्यूजन चल रहा है अभी, क्योंकि 2 दिन पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो आज उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, अभी तक इनको डाउटफुल ही लग रहा है। नहीं, इसके हिसाब से तो लग रहा है, क्योंकि ये अगर इस समय नहीं हुई फिर तो मुश्किल है, क्योंकि इस समय जो इतना ट्रांजिट इतना बढ़िया चल रहा है इसका जुपिटर वगैरह का, और जुपिटर इसके 10th हाउस के लॉर्ड को देख भी रहा है, और सैटर्न भी 10th हाउस के लॉर्ड को, सॉरी 7th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है। तो शादी कब तक हो जाएगी फिर? हाँ, तो ये टाइम है कि ये डिसीजन हो सकता है इस समय। तो 7th का लॉर्ड भी मार्स है, उसको देख भी रहा है वो। हाँ बिल्कुल, ये 7th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है और सैटर्न भी देख रहा है। सर हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो Uncle, but they say कि Saturn creates delays in decisions. So Saturn forces you to make a decision because Saturn puts the pressure. I see. So that is a very important planet. क्या तय करा रखा हुआ है? साफ पूछो, वो दे दो, पानी भी दे दो और वो भी डाल दो थोड़ा सा उसमें, का चलता है। तुम इधर कर लेना उस पानी फेंक के। आवाज कचरा खत्म, ऑफ कर दीजिए सब। इसका है ये नहीं, जो हमने तय करके रखा है ना। पार्डन,
राजेश ओबरॉय। बलजीत जी के यहाँ से भी आवाज आ रही है। राजेश जी का है क्या? जी। सॉरी, म्यूट कर देता हूँ। चलो, हो गया। सर इस केस में इंटरकास्ट मैरिज कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इंटरकास्ट कैसे हम देखते हैं? जब भी 7th हाउस के ऊपर अगर मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो, पर्टिकुलरली सैटर्न हो या राहु हो, तो उस टाइम पॉसिबिलिटी होती है इंटरकास्ट मैरिज की। तो ये क्या इंटरकास्ट होने जा रही है, क्या हो रहा है? टोटली इंटरकास्ट है ये तो। ये जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं पिशौरी होते हैं ना, उनके साथ हो रही है। खुद तो यहाँ पंजाबी हैं ये। अच्छा अच्छा। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, शायद आज बात करने आएंगे। किस बारे में बात करेंगे ये मालूम नहीं है, पर अभी काफी उनका कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ, बट ये टाइम है कि वो इंडिकेट करता है कि चांसेस काफी हैं। मतलब विदाउट जॉब है, कुछ भी नहीं है, फिर भी फाइनल हो जाएगी शादी। फिर वो ले जाएंगे इनको अपने साथ। हाँ, ये हो सकता है। हो सकता है कि वो अपने साथ वहां ले जाएंगे, और क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट का चांस तो लग ही रहा है। नहीं, अभी वो लड़की वाले तो यही रहते हैं, घर के पास ही रहते हैं। तो फिर फॉरेन कौन ले जा रहा है? कोई नहीं, तो खुद ट्राई करेगा, जाएगा जब भी जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर सारे पोजीशन की प्लैनेट खराब होती, फिर तो हम कह सकते थे कि शादी नहीं होगी या काम भी नहीं करेगा। बट कुछ प्लैनेट की पोजीशन काफी अच्छी है, और अभी तक इसने एजुकेशन ग्रेजुएशन भी नहीं करी, वो भी छोड़ दिया इसने बीच में। हाँ, वो तो सारे जो आप देख रहे हैं ना कि 4th हाउस कितना एफ्लिक्ट, 4th हाउस का जो लॉर्ड है सन, या जो 10th हाउस में है, वो सारे मैलेफिक के साथ एसोसिएशन है उसका। एक भी तो बेनिफिक के साथ नहीं है। Sir, if in case somebody asks कि जो उसका spouse होगी वो कैसी होगी, और मतलब by nature and by looks, तो हम वो कैसे predict करेंगे? She will be someone like Mars and with lots of money. बिल्कुल सही। Means Mars है तो aggressive and could be younger. भी हो सकती है। हाँ, क्या चीज दोबारा बोलिए? 7th हाउस का लॉर्ड मार्स है, मंगल है। हाँ, तो मंगल मीन्स कि you have that type of characteristics. Yeah. Cold and aggressive in nature. हाँ, मतलब उसको दबा कर रखेगी बिल्कुल। Dominating. And Saturn aspect है तो बट जुपिटर है उसके लग्न में, तो और मून भी है। She will be nice also. कोई प्रॉब्लम इंडिकेटेड नहीं है। जैसे हम कहें कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो भी ऐसा अभी तो कई बार नेगेटिव। सर डेबिलिटेड मून को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे फिर यहाँ स्पाउस के लिए? खराब है ना, टेंशन तो रखता ही है मून का। जब अभी कोई काम भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो सर लड़की जो काफी कभी उनको बोल देती है, अगर तुम शादी उसको लड़के को बोलती है हम भागकर शादी कर लेते हैं, इंटरकास्ट है, अगर मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर कहती है अगर नहीं शादी होगी तो मैं सुसाइड कर लूंगी, कुछ ऐसे डिफरेंट बातें कर दी है। हाँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि शादी तो हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे हॉरोस्कोप, अच्छे योगा भी है ना, जैसे एक्सचेंज हुआ थर्ड एंड मून एंड मार्स का। वो रिच फैमिली से है, इनकी तो मिडिल क्लास से भी लोअर में है, तो सेट कैसे होगा फिर? वही लग रहा है ना कि जुपिटर है उसके लग्न में, इसका जो गज केसरी योग। पर लड़के के घर में, उनके घर में तो सर्वेंट 3-4 जैसे मुझे पता चला है, और इनके घर में तो एक भी नहीं है, तो सेट कैसे होगा दोनों का? जब भाग के शादी करनी तो 8th हाउस, आप इनका 8th हाउस देखिए, वो वीनस है उसके अंदर, तो मैरिड लाइफ तो इनकी अच्छी होगी। जुपिटर इज द ओनर ऑफ द हाउस आल्सो। हाँ, मरकरी जुपिटर इधर दोनों बेनिफिक प्लैनेट हैं यहाँ पर, तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इनकी। बट नवान चार्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कहूंगे कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बट आएंगी तो है, क्योंकि नवान चार्ट वीक है काफी। सर अभी जैसे यहाँ पर सेटर्न का भी ऑस्पेक्ट है 7th हाउस पे, तो दैट विल इम्पैक्ट ऑन द लुक्स और द नेचर ऑफ द स्पाउस? नहीं, डिले, एक तो डिले हो गया मैरिज में। हाँ, सो डिले का 95 अच्छा, 95 जल्दी हो रहा है। तो जल्दी हो रहा है, डिले नहीं है, राइट। ये तो अर्ली मैरिज है।
और मतलब ये हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कोई भी प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है तो हम उसमें मतलब कोई, क्योंकि जनरल क्वेश्चन होता है कि स्पाउस देखने में कैसा होगा या कैसी होगी और उसकी नेचर कैसी होगी। अब प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से हम किस प्लैनेट को मतलब फिट करें उसकी लुक्स के लिए और किसको नेचर के लिए? जो प्लैनेट प्लेस्ड है वो मून और जुपिटर हैं, राइट, और उसको सैटर्न देख रहा है, तो इट्स नॉट ए बैड कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट दैट कि पर्सन इज, क्योंकि मून नीच का भी है और सैटर्न उसको देख रहा है, तो पर्सन इज ऑलवेज अंडर लॉट ऑफ मेंटल टेंशन। सेकेंडली इसका जो लॉर्ड है वो मार्स है, मार्स इज वेल प्लेस्ड इन द 3rd हाउस और उसके ऊपर जुपिटर मरकरी का एस्पेक्ट भी है, तो नेचर वाइज तो ठीक है। सर अगर सैटर्न डिले करा रहा है तो मार्स तो इसको फास्ट भी कराएगा ना, क्योंकि हाँ वही, मार्स है इसीलिए इसका। क्योंकि वो जुपिटर भी है और मार्स का लॉर्ड है उसका, और मार्स के लॉर्ड के ऊपर अच्छे एस्पेक्ट भी हैं, तो अभी अगले 2 महीने में इसकी शादी हो जाएगी क्योंकि उनकी मदर यही कह रही है, कहती है अगर बात हो जाती है तो मैं अप्रैल तक शादी कर दूंगी। हाँ, तो हो सकता है कि मरकरी के सब पीरियड में ही हो जाएगी यहाँ पर। और इसका प्रोफेशन का क्या? प्रोफेशनली बताया ना मैंने कि ज्यादा अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, ये इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ नहीं कर सकता। इन-लॉज हेल्प करेंगे इसकी? हाँ, इन-लॉज हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर तो ये सही, मतलब बिल्कुल सही प्रपोजल आया है। मार्स का एस्पेक्ट है ना, तो उसकी वाइफ से हेल्प होगी इसको। ये जो यहाँ पर है ना, इसका 9th हाउस है ये, मतलब वाइफ का फादर, तो वो हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक तो नीच भंग भी हो रहा है और दूसरा जुपिटर और मरकरी उसको देख रहे हैं, तो बेनिफिक प्लैनेट है, तो वहां से हेल्प मिल सकती है उसके फादर से। हाँ, वो बिजनेस में है, वो बिजनेसमैन ही है, जो लड़की के फादर जो है। तो बिजनेस कहाँ पर है उनका? यही दिल्ली में ही है। अच्छा, तो हाँ उससे हेल्प मिल सकती है, बट खुद अपना नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे मैलेफिक का एसोसिएशन है, सारे मैलेफिक का। जो इतना बड़ा बिजनेस है संभालने के लिए चाहिए तो कोई हाँ, तो बस वही है कि उनके बेटा है ना उनका संभालने के लिए। He will have something good, but authority नहीं होगी एक्चुअली ना। ये बर्बादी का कारण बनेगा उनका। हाँ, लग रहा है। अगर इससे शादी होती है तो नेचुरली बैड लक फॉर दैट गर्ल एक्चुअली। सही कह रहे हो सर आप? गर्ल का भी हॉरोस्कोप है क्या आपके पास? गर्ल का मैंने बोला है, मैंने डेट ऑफ बर्थ दे देना मुझे। पता लग रहा है ना मून, क्योंकि अगर कोई आदमी काम नहीं कर सकता कुछ भी, सन इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो that cannot be a good person actually। लड़के का सन अच्छा होना चाहिए। इसमें वीनस जो है सर, में वीनस तो सही 8th में चला पर्सनालिटी गया तो वैसे भी मैरिटल प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। हाँ जी, वीनस जो है 8th में चला गया, लड़का है वो, मतलब इसका सेपरेशन तो नहीं है ना इसमें? नहीं सेपरेशन तो नहीं होगा ना? सेपरेशन हो सकता है, नवांश में लग्न वगैरह बहुत वीक है। सर वीनस जो 8वें में चला गया लड़के के लिए तो ठीक नहीं है ना ये? क्यों? मैरिटल लाइफ के अंदर खड्डे में ही चला गया। वीनस जो है वो कारक है शादी का। लग्न का भी लॉर्ड है ना, लगन का लोड तो है, लगन का लोड भी खड्डे में चला गया तब भी ठीक नहीं है सर। मैंने यही कहा कि थोड़ा वीक हो गया, बट बीइंग ए लॉर्ड ऑफ लगन, सर वो सेल्फ भी वीक हो गया और जो मैरिटल का कारक है वो भी वीक हो गया, तो मुझे तो लग रहा है कि दोनों चीजें बड़ी वीक हो गई। नहीं, आप ये नहीं देख रहे, पहले वीनस लग्न का लॉर्ड है, दूसरा इसके दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो मौज मस्ती तो कराएंगे। ऐसा नहीं है कि वीनस तो बेसिकली हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, मौज मस्ती का प्लैनेट है, तो वो तो कराएगा सब कुछ जो है। तो ये इंडिकेट करता है कि बिना कुछ काम किए हुए भी ही विल गेट एवरीथिंग इन द लाइफ। पर इन-लॉज का कबाड़ा कर देगा। तो इसमें हम जैसे वैसे इन जनरल अगर कोई पूछे रेमेडी, इसमें हम डायमंड रिकमेंड कर सकते हैं? नहीं, 8वें में बैठा है, डायमंड कैसे हो सकता है? 8वें में बैठा है वीनस तो। जैसे ऑलवेज वी कैन, हाँ, लग्न का लॉर्ड होने की वजह से हम कर सकते हैं, तो बट वो 6 का लॉर्ड है और 8 में भी बैठा है, तो 6 और 8 दोनों से एसोसिएटेड है। हाँ, तो लग्न का लॉर्ड एक्चुअली में बहुत पावरफुल पोजीशन हो जाती है, तो कहीं भी जाए कितना भी वीक हो, लेकिन उतना वीक नहीं हो पाता। और कोई प्लैनेट होता तो डेफिनेटली वीक था, और यहाँ पर ये दोनों तरफ जो बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है वो भी मैटर करता है। ओके,
तीनों So, बेनिफिट but still, इसमें ना I'm not clear कि how to predict about the looks of this spouse. I'm still not clear. लुक्स Because तो ये ठीक, general question I have seen people देखिए ask कि लुक्स spouse तो का सर लुक्स हेल्दी कैसा तो भी होगा हो सकता देखने है, में। स्पाउस जुपिटर है लुक्स तो शशि। अच्छे होने चाहिए। लुक्स तो नॉर्मल होंगे, ठीक ठाक होंगे बिल्कुल। लुक्स तो अच्छे हैं। So, कौन सा as प्लेनेट a अगर होता Saturn तो देखने में aspect अच्छा है, होता? सैटर्न Saturn का ठीक, aspect है तो it could be complexion won't be so fair. नहीं, नहीं वेरी नहीं, फेयर। खाली आप ये देखिए ना कि खाली ये मत देखिए सैटर्न का एस्पेक्ट है, मून पूरा का हाउस aspect को भी भी है। देखिए, उसके लॉर्ड को भी देखिए, उसके कारक को भी देखिए। तो सैटर्न का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस या आप जो कह रहे हैं कि डार्क लुक है, लेकिन वो बाकी जो चीजें हैं सर उनसे अगर देखा जाए तो एक तरह से लग्नादि योग भी बन रहा है इनका, देखा जाए दैट वे तो। ये कहाँ बन रहा है नहीं लगना नहीं, दियो? मतलब थोड़ा सा मरकरी ही शिफ्ट हुआ है, वैसे हाँ 3 अच्छे प्लैनेट्स हैं नीचे इनके जो देख रहे हैं लग्न हाँ, को। जुपिटर और मरकरी वीनस नहीं, है, बट मरकरी, वो मून भी है सर। हाँ, मून बट से नहीं अब होता। देखिए बेसिकली यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, सन बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, और सन जिसका बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है ना, तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे। सर स्पाउस के लुक्स के लिए नवांश को नहीं देखना चाहिए, नवांश के लग्न को। नहीं, लग्न कहते हैं कि लग्न अगर बेनिफिक है तो लुक्स अच्छे होते हैं। दोनों बॉय और नवांश गर्ल के दोनों के लुक्स अच्छे हैं, पर्सनालिटीज अच्छी हैं, दोनों की फेयर है, बहुत फेयर है। क्योंकि इसका भी लॉर्ड वीनस है तो नेचुरली वो तो ठीक होगा। जुपिटर भी देख रहा है, वीनस भी देख रहा है, वो तो लुक्स की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये और है सर कि नवांश के लग्न से हम स्पाउस के लुक्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि अगर पर्टिकुलरली अगर लग्न का लॉर्ड अगर स्ट्रांग होता है, वहां पर बेनिफिक होता है, तो उसके लुक्स अच्छे होते हैं। ओके सर। So ये किसने दिए horoscope? मैंने दिए, बलजीत। So when something get decided, so please text us in the group. So we also get the surety. नहीं साहब, क्या फाइनल क्या हुआ फिर? प्रोफेशन एंड मैरिज फाइनल ये हुआ कि शादी की होने की संभावना है पूरी, बिफोर अप्रैल। हाँ, तो शादी होने की पॉसिबिलिटी है। काम वो कुछ नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। और खाएगा कैसे? सर हाँ जी? ऐसे भी तो हो सकता है कि उनके इन लॉज को चाहिए ही नहीं, उनको खाली सपोर्टिंग हैंड चाहिए। उसने सपोर्टिंग हैंड, एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर। सपोर्टिंग हैंड में भी कुछ एक्सपेक्ट होता है कि आदमी उसको बढ़ाएगा या कुछ ठीक करेगा। अगर उसको नेगेटिव कर रहा है तो दैट इज नॉट ए सपोर्टिंग हैंड एक्चुअली। So this is doing some negative over there. करेक्ट करेक्ट। क्योंकि देखिए सन जब हमारी आत्मा ही इतनी ज्यादा एफ्लिक्टेड हो जाती है तो वो यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट एक्चुअली। और 10th हाउस यहाँ नजर भी आ रहा है कि बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, कोई बेनिफिट तो है नहीं एक भी प्लैनेट वहां पर। नहीं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक तो आप कह रहे हैं मैरिज हो जाएगी, दूसरी तरफ प्रोफेशन वाइज 0 है, तो चलेगी कैसे? वही तो नवांश चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि नवांश चार्ट में प्रॉब्लम भी इंडिकेट कर रहा है मैरिज की, कि चलेगी नहीं। नवांश चार्ट में जो लग्न है या जो 7th हाउस वगैरह है वो एफ्लिक्टेड है, तो प्रॉब्लम तो यहाँ से इंडिकेटेड है ही है। सेपरेशन हो सकता है। बट क्वेश्चन ये है कि व्हाई आई एम सेइंग कि हो जाएगी या वहां से एसोसिएट हो जाएगा, बिकॉज सम प्लैनेट्स आर रियली गुड एक्चुअली। जैसे कि ये 9th का लॉर्ड 10th में है, तो कुछ तो मिलेगा ही ना, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं मिलेगा। जुपिटर वगैरह ये सब लग्न को देख रहा है, या 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, तो ये अपॉर्चुनिटीज तो इंडिकेट कर ही रहा है कि कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं होते या मार्स का वो नहीं होता नीच भंग वगैरह, या सैटर्न योग कारक नहीं होता, फिर तो था कि कुछ नहीं मिलेगा, ना शादी होगी ना कुछ मिलेगा। बट क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ तो मिलेगा ही ना कहीं ना कहीं से। अभी भी अपने पेरेंट्स से लेकर कहीं भी जाना है, खाना है, जो भी है पेरेंट्स से ले रहा है अभी पैसे। वही मैं कह रहा हूँ कि सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, अभी भी मिलेंगी और बाद में भी मिलेंगी। अनिल जी, इसमें सन एफ्लिक्टेड क्यों है? व्हाई सन इज एफ्लिक्टेड? इट्स एफ्लिक्टेड विद ऑल। सैटर्न है, या राहु भी देख रहा है, मार्स भी देख रहा है। ओके ओके। ऑल मेलेफिक्स आर हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन दैट। तो फाइनल क्या मतलब मैरिज होगी और ही? हाँ, मैरिज की पॉसिबिलिटी तो है। अच्छा, और ऐसी प्रोफेशन वाइज ही विल नॉट डू एनीथिंग? नहीं, बहुत कम चांसेस हैं, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। हेल्प से चलेगा?
But only thing is कि even without doing anything, he will get all the facilities. Okay. क्योंकि काफी राजयोग भी तो हैं, तो उसका भी तो कुछ ना कहीं तो इफेक्ट आएगा ही ना. अगर राजयोग नहीं होते फिर तो था कि ना तो शादी होगी अच्छी तरह से और ना ही काम करेगा. बट राजयोग भी है तो इंडिकेशन तो यही है कि इन स्पाइट ऑफ कि कुछ नहीं करना है, लेकिन ही गेट्स ऑल द कंफर्ट्स. सेपरेशन वगैरह तो कुछ नहीं शो कर रहा है ना इसमें, सेकंड मैरिज या डिवोर्स वगैरह. नवान शायद वीक है तो प्रॉब्लम तो इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉब्लम आ सकती है. चलिए तो 30 नंबर अब. ये भी 94 का है, 10th जनवरी 94, 1352 और दिल्ली. इसमें देखिए क्या पोजीशन है. ये है. यहाँ पर डिग्री वाइज देखिए प्लैनेट की पहले. तो मरकरी तो बहुत वीक है. तो 0 और मार्स कंबस्टस है, वीक है, सैटर्न भी कंबस्टस है. भी वीक है. तीन प्लैनेट जो हैं दे आर वेरी नियर टू द सन. एक मरकरी, और अमावस्या मार्स का जन्म और है, वीनस. समूह एक साथ है. इनका असेंडेंट भी वीक है. अभी आते हैं. मरकरी, मार्स एंड वीनस जो है तीनों कंबस्ट हैं, पहली चीज, जो कि ये तीन मेन प्लैनेट हैं. और अगर हम रश्मि किरण आप देख ही रहे हैं 19.5 है, और षटबल अभी देख रहे थे कहाँ चला गया. सर मरकरी, जुपिटर, वीनस तीनों वीक आ रहे हैं षटबल में. देखिए यहाँ पर सन का जो षटबल है 7.4 है, मून का इतना है. का सही है, इससे वीनस का थोड़ा कम. अब सही है, बस वीनस का कम है. जुपिटर भी कम है. मरकरी भी कम है. वीनस भी कम है, जुपिटर भी कम है, मरकरी भी तो कम है ही है, कंबस्ट भी है ही है, और मार्स भी हमने देख ही लिया कि वो तीन प्लैनेट जो है वो कंबस्ट हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि एक्सेप्ट ये जो सन और मून हैं, दो प्लैनेट, बाकी प्लैनेट जो है वो वीक है. सैटर्न इज आल्सो ओके. सैटर्न अगेन योग कारक है, और वही सस महापुरुष योग बना रहा है. 9th का लॉर्ड 10th में है, और फिर वही चीज है यहाँ भी 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है. आई थिंक ये तो सेम पोजीशन हो गई, तो बिल्कुल करीब करीब होगी. 1 साल का फर्क है, सेम पोजीशन होगी. अच्छा, एनीवे, बट मरकरी वर्गोत्तम है इसमें सर. वर्गोत्तम कैसे देख लिया आपने? नवान शायद तो बनाया नहीं अभी. मैंने पहले से देख लिया सर. ये है, तो वेरी गुड राजेश जी. मरकरी वर्गोत्तम, यू आर राइट. और कोई प्लैनेट वर्गोत्तम नहीं है, सिर्फ मरकरी वर्गोत्तम है. ठीक है, मरकरी इज रियली वेल प्लेस्ड. विपरीत राजयोग बन रहा है 8th हाउस में. यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है. ये 12th का लॉर्ड और 6th मार्स एंड वीनस. मार्स एंड वीनस ये दोनों यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहे हैं. और सर जुपिटर भी 6th में चला गया, सारे चले गए इनके 6th 8th 12th. सन मून दोनों एक साथ. हाँ जी, सन मून दोनों ही एक साथ है. सन और मून दोनों एक साथ हैं. ठीक है. अमावस का जन्म हो गया. जैन साहब केंद्र में सारे मैलेफिक प्लैनेट हैं. हाँ, तो दैट व्हाट दैट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है वो? सर वो ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे. लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल. जब केंद्र में सारे मैलेफिक प्लैनेट होते हैं तो दैट इंडिकेट द लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एक्चुअली.
अनिल जी एक चीज और देखें, इसमें ईस्ट फल जो है बहुत कम है, कस्ट फल बहुत ज्यादा है सभी में। हाँ, तो वो तो वीक आ ही रहे हैं ना, सारे प्लैनेट ही वीक हैं, आप देख रहे हैं करीब करीब सारे प्लैनेट जो है यहाँ भी वीक हैं। और यहाँ भी देखिए कुछ राजयोग देखिए, जुपिटर वीनस का एक्सचेंज है, ये जो एक्सचेंज है यहाँ पर जुपिटर वीनस का, इट्स अ वेरी गुड एक्सचेंज। सर ये त्रिक हाउस में कंसिडर करेंगे? कहीं भी हो, एक्सचेंज इज एक्सचेंज। तो इसमें चंद्र मंगल योग भी होगा? दूसरा चंद्र मंगल योग बन रहा है मून एंड मार्स का, तो ऐसे लोगों के पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। और क्या देखा हम लोगों ने कि 7th हाउस को अगर हम देखें तो सैटर्न राहु का है, बट इधर भी दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट भी है। और 7th का लॉर्ड इज इन द 8th हाउस, 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस, वो उतना अच्छा नहीं है यहाँ पर। सर लगन लॉर्ड भी 8th हाउस में है ना, वीनस। हाँ, सर 10th हाउस तो ठीक है इनका प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इसका 10th हाउस जो है वो पहले वाले से, जुपिटर भी देख रहा है और सैटर्न अपने साइन में है और कारक भी है। हाँ। तो ये क्या कर रहा है बलजीत जी? कुछ नहीं कर रहा है, अभी इसको जॉब मिल ही नहीं रही है। नहीं, क्या किया, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इसने MBA कर रखा है उसने, पर जॉब हाँ, नहीं मिल रही। हाँ, तो यही कह रहा ना, उससे तो बेटर है क्योंकि इसका जो 10th हाउस है इतना खराब नहीं है, तो ये तो है कि ही शुड गेट ए जॉब एक्चुअली, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 मेरे ख्याल हो गया होगा अभी, तो ये अभी तक जॉब नहीं मिली। हाँ, बट इसका जो पीरियड चल रहा है ना, वो सन सैटर्न का पीरियड चल रहा है अभी। ये जो पीरियड चल रहा है इस समय सन सैटर्न का पीरियड चल रहा है, जो अक्टूबर 21 तक चलेगा। तो जैसे ये पीरियड खत्म होगा देन सन मरकरी विल स्टार्ट। ये दोनों अच्छे हैं। मरकरी का आप देखिए कि 5th का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में है, और देखिए सैटर्न यहाँ योग कारक भी है, अच्छी पोजीशन में भी है, तो जॉब तो इसको मिलेगा। और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हॉरोस्कोप खराब नहीं है, जैसे उसका खराब था इसका खराब नहीं है। सर जुपिटर भी 10th हाउस का कारक है, वो खुद को देख रहा है कारक को, तो वो भी ठीक है। जुपिटर 10th हाउस को देख भी रहा है, ये भी अच्छी बात है। मतलब जॉब फर्स्ट टाइम जॉब ये 27 की एज में करेगा, पर अच्छी पोजीशन पे जाएगा। हाँ, और दूसरा ये भी है कि इसकी जो 7.5 चल रही है, और पिछले अभी तो लास्ट फेज चल रहा है, तो 6 साल हो गए करीब 7.5 चलते हुए, और सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ राहु पर हुआ, फिर सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ सन पर हुआ, तो ये सब पीरियड बहुत अच्छा नहीं था जो भी हम देखें। बट जैसे ही ये जो पहले वाला हॉरोस्कोप देखा उसमें भी तो 7.5 हुई फिर। नहीं, उसमें तो कुछ और पोजीशन थी ना, मून वाज इन द 8th साइन, तो वो तो खत्म हो गई उसकी, उसकी खत्म हो गई, इसकी अभी चल रही है। लास्ट 1 ईयर है सर 7.5। हाँ, तो इसकी नौकरी तो लग जाएगी, नौकरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तक लगेगी। वही मैंने जैसे कहा कि सन सैटर्न का पीरियड जब खत्म होगा, या पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जब जुपिटर यहाँ ट्रांजिट करेगा अप्रैल के बाद, तो उस टाइम भी पॉसिबिलिटी है नौकरी लगने की जो है। नौकरी का सर तो, इनका मैं ये पूछी थी, इनका इंटरकास्ट मैरिज होगा क्या? सैटर्न और राहु का जैसे कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो चांसेस है उसके, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। हाँ। इंटरकास्ट मैरिज के लिए क्या होना चाहिए? 7th हाउस के ऊपर मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सर लेकिन इनका ये राहु केतु एक्सिस में आ रहा है, दोनों चीज में, लग्न भी और स्पाउस भी। तो उससे क्या होगा? तो झगड़े रहेंगे घर में? नहीं, सैटर्न राहु तो है, मतलब 7th हाउस में राहु तो प्लेस्ड है और सैटर्न उसको देख भी रहा है। हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम रहेगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। बट यहाँ पर अगर इसका नवांश चार्ट देखें ना आप, तो नवांश चार्ट यहाँ बिल्कुल अलग है इसका। सर बिकॉज वो सारे परिवर्तन योग से सब कैंसिल आउट हो गया। नहीं, यहाँ भी देखिए ना, नवांश चार्ट का लग्न देखिए पहले, मरकरी का प्लेसमेंट है यहाँ पर, और इसको नहीं, इसको भी तीनों मेलेफिक देख रहे हैं, मार्स भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है। लग्न को
तीनों मैलिफिक देख रहे हैं, मार्स, सैटर्न, राहु। तो सैटर्न का तो अपना ही घर है। हाँ, बट जब तीनों मैलिफिक हो जाता है एसोसिएशन तो उसको खराब करते हैं। और यहाँ भी अगर हम देखें तो 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, 8th हाउस अफ्लिक्टेड है, 7th का लॉर्ड 8th हाउस में है, तो प्रॉब्लम तो इंडिकेट कर ही रहा है। और मेन चीज ये है ना कि सारे प्लैनेट कंबस्ट हैं, वो एक बहुत खराब पोजीशन है। अब जिसके मार्स, मरकरी, वीनस कंबस्ट होंगे तो नेचुरली सुख सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। सर केतु असेंडेंट में है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? सेल्फ डिटैचमेंट या खाली केतु से नहीं होगा। केतु ओनली गिव्स यू सम स्पिरिचुअल टेंडेंसीज, या कभी कभी जैसे कुछ लोगों को फोबिया हो जाता है, कुछ वहम हो जाता है, उस टाइप की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। ओके। और अगर सर केतु असेंडेंट में है, मून 8th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं माइंड भी अफ्लिक्टेड नहीं होगा? मून अफ्लिक्टेड है, इतना ज्यादा अफ्लिक्शन भी नहीं है क्योंकि वीनस भी साथ में है उसके, और मार्स से अफ्लिक्टेड है, और तो ऐसा कुछ नहीं है खास। सन और मून एक साथ होने में कोई दिक्कत नहीं होता? क्या होना चाहिए? सन मून अगर इकट्ठे होंगे तो क्या होता है? डिसीजन मेंटली डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि मून के पास पावर नहीं है। लॉजिकल होता है। क्यों डिस्टर्ब क्यों रहेगा? ये तो पॉजिटिव होगा। वो तो अच्छा होना चाहिए सर कि सोल और माइंड यूनिसन में काम कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। दे आर वेरी गुड डिसीजन मेकर। Because sun is your willpower and moon is your emotion. ये हेल्पफुल भी बहुत है, लोगों की बहुत हेल्प करता है। हाँ, तो इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ विल पावर एंड इमोशंस, तो अच्छा है वो। उसके जैसा नहीं है हॉरोस्कोप, जो वो भाई है इसका। नहीं भाई नहीं है, ये कोई और है। अच्छा, और कोई है। अंकल सैटर्न एंड सन जब साथ में होते हैं किसी घर में, that is I guess added pressure on that house then? It's both negative planet, both malefic planet. तो इसमें फादर और सन में बनती नहीं है ना? कैसे? हाँ, अगर सन सैटर्न इकट्ठा होगा तो फादर सन में नहीं बनेगा, अपने ऑफिस में जैसे बॉस वगैरह के साथ नहीं बनती, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ नहीं बनती। सर ये तो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक दो जगह इसने जॉब कर रही है, अगर वहाँ बॉस ने या सीनियर ने कुछ कह दिया तो जॉब छोड़ के आ गया ये। तो इसमें पहले वाला, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट वाला जो था। हाँ, फर्स्ट वाला तो कहीं कर ही नहीं पाएगा, वो तो बेकार है। सर अगर गर्ल के हॉरोस्कोप में हो सन सैटर्न इकट्ठे किसी हाउस में, तो भी फादर से नहीं बनेगी? नहीं, देखिए बाप बेटे में नहीं बनती, गर्ल में इतना नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि उसका ज्यादा से नहीं होता वैसे भी जो है फैमिली मैटर्स में। ओके। तो लड़का क्योंकि साथ ही रहता है या जो भी करता है तो वो ज्यादा मैटर करता है एक्चुअली। ओके। बट डेफिनेटली जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं तो बॉसेस वगैरह से झगड़ा होता रहेगा, आपको गवर्नमेंट के साथ हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी, तो उस टाइप की टेंडेंसी तो होती है। अंकल उसी रिलेशन में अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? सन सैटर्न, हाँ जी, उसमें किसी और के हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी डिबिलिटेटेड साथ में था 8th हाउस में। हाँ, Sun Saturn together with a debilitated Mercury in the 8th house. And Sun is also the lord of the Lagna. So I mean this person has got a big ego, but you know, just I was just curious कि Sun के ऊपर क्या impact रहेगा इसका, और ये 12th house, but the 8th house में जाके I guess marriage पे भी impact हो जाएगा। देखिए पहली चीज तो ये है कि जहां तक सन का सवाल है, सन यू से द लॉर्ड ऑफ लग्ना। करेक्ट। एंड सन को वैसे भी 8th हाउस में अगर अकेला प्लैनेट है तो ना तो उसको वहां बैठने का दोष लगता है, ना ही उसके लॉर्ड होने का दोष लगता है। बट एज यू से इट इज अफ्लिक्टेड विद अदर मेलिफिक आल्सो, सैटर्न की, तो तब प्रॉब्लम होती है कि सन सैटर्न इकट्ठे हैं वहां पर, तो नेचुरली प्रॉब्लम है। And a debilitated Mercury because it's the Rashi is 12. हाँ, तो मरकरी अगर डेबिलिटेटेड है, उसका डेबिलिटेशन कैंसिल नहीं हो रहा बाई चांस अगर, हाँ जी, तो फिर तो एक खराब है ये, मतलब कम्युनिकेशंस में भी दिक्कत आएंगे आई गेस, बिकॉज़ मर्क्यूरी बिल्कुल बिकॉज़ मरकरी इज प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो, तो दे आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या आपको ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं करते। थैंक यू। अच्छा
तो सर मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे इस कुंडली को लेके कि इनके जो फादर इन लॉ होंगे, जो कि थर्ड हाउस में फोर्थ राशि है, जो कि मून की है, और वो भी 8th हाउस में बैठ गए, तो और 8th हाउस का लॉर्ड भी वहीं बैठा है, सॉरी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी, तो फिर इन लोगों का मतलब ट्यूनिंग अच्छी होगी फिर फादर इन लॉ के साथ। यस सर। तो देखिए इसके ऊपर मरकरी का एस्पेक्ट है और राहु का भी एस्पेक्ट है, तो ये तो बैलेंस हो गया। इसका लॉर्ड यहाँ पर 8th हाउस में है, एफ्लिक्टेड विद सन एंड मार्स, तो फादर इन लॉ के साथ ट्यूनिंग अच्छी कैसे होगी? ओके वो तो वो पॉसिबल नहीं है उसके साथ। फादर इन लॉ हम थर्ड हाउस से देखते हैं? नहीं, फादर मतलब ये फादर ऑफ द स्पाउस ये है, तो यहाँ से 9th हाउस ये हुआ ना। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसका कोई ब्रदर सिस्टर भी नहीं है, ही इज द ओनली चाइल्ड। क्योंकि ये जो आप थर्ड हाउस को देखिए तो ये एफ्लिक्टेड है, 8th हाउस में चला गया और सन और मार्स के एफ्लिक्टेड हो गया। बट सर वीनस भी तो वही है। हाँ, एफ्लिक्शन ज्यादा है ना। देखिए लॉर्ड इन द 8th हाउस पहली चीज, और अगर खाली चलो लॉर्ड भी होता वीनस के साथ तो देन इट वाज ओके, बट सन एंड मार्स दे आर टू मैलेफिक प्लैनेट्स, और इसके इस साइड में राहु भी है और सैटर्न भी है, तो उसको भी हम एसोसिएटेड मानते हैं विद दिस हाउस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि सभी मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है इसके साथ। ओके अंकल, हम ये सब जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, सबके जब चार्ट्स देख रहे हैं, किसी में हमने ये नहीं देखा कि इन द भाव चलित हैव द प्लैनेट्स मूव्ड एनी हाउस। क्यों देख रहे हैं हम लोग? ये यहाँ लिखा हुआ है हर प्लैनेट का, आई सी, किस किस भाव में जा रहे हैं, दैट इज रिटन ओवर हियर, सो वी हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड। जब हम किसी प्लैनेट के रिजल्ट की बात करेंगे तो देखेंगे कोई हाउस में तो मूव नहीं कर गया। अब जैसे हमने अभी कहा कि थर्ड हाउस का लॉर्ड मून है, मून तो कहीं मूव नहीं कर रहा, इसी 8th हाउस में है। करेक्ट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें। करेक्ट, बट द लग्न लॉर्ड इज मूविंग अ भाव, राइट? लग्न लॉर्ड इज गोइंग टू द 9th हाउस, तो 9th हाउस का रिजल्ट ठीक है मतलब। तो इसका जहां तक सवाल है, प्रोफेशनली डेफिनेटली ठीक रहेगा, और नौकरी वोकरी भी लगेगी इसकी जो है, उसमें भी कोई ऐसे डाउट नहीं है, एंड प्रोफेशनली शुड डू वेल एक्चुअली। और मैरिज भी ठीक रहेगी इसकी? मैरिज भी ठीक है, इतने मतलब मैरिज खराब नहीं है। होगी मैरिज इसकी अगर हो देखें तो इससे? हाँ जी, मैरिज कब हो सकती है इसकी? होगी तो वीनस के पीरियड में होगी, 24 में। 23 में। Uncle, just one more question on this horoscope then. Like the 10th lord is Saturn. Correct. In this case, Saturn we will say is in the 11th house, correct? It is going to the 11th house, yeah. तो उसका क्या implication होगा अंकल? राजयोग तो नहीं होगा ना फिर ये? नहीं, योग वगैरह हम सब इसी से देखेंगे। Only thing is कि in place of giving the result of 10th house, Saturn will give the result of 11th house. It will remain in this sign only. Sign change नहीं हो रहा। 11th हाउस में भी जा रहा है तो अपने साइन में जा रहा है, तो रिजल्ट खराब नहीं है उसके भी जो है, क्योंकि जब हम हाउस चेंज कर रहे हैं तो साइन थोड़ी चेंज हो रहा है, तो साइन तो वही है उसका, तो इट्स वेल प्लेस्ड इन इट्स ओन साइन। गेन्स इंक्रीज हो जाएंगे इस केस में तो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अपने साइन में प्लेस, तो वो खराब नहीं हो रहा कुछ ऐसा उसमें जो है। यहाँ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वीनस हमें लग रहा है कि 8th हाउस में, लेकिन नहीं 9th हाउस में चला गया है, तो यहाँ तो अच्छा हो गया, बट यहाँ भी अच्छा ही है। सर 11th का लॉर्ड 6th में है, इससे भी गेन होगा? 11th का लॉर्ड 6th में है तो गेन क्यों होगा उससे? ये तो लॉस हो गया ना, अपने से 8वीं जगह चला गया, अपने से 8th पोजीशन में, तो गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है, बट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो गेन तो हम उसी को मानेंगे ना, प्रोफेशन को या किसी और? हाँ जी,
प्रोफेशन में गेन होगा और वैसे लॉस होगा, मतलब इसका क्या मतलब? नहीं, आप कह रहे हैं ना गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अपने से 8th हाउस में चला गया, छठे घर में जो है। तो ये ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बट प्रोफेशनली ठीक करेगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएगा, बट ठीक ठीक रहेगा प्रोफेशन जो है। नहीं तो सर चलित में ये जुपिटर 7th हाउस में नहीं आ जाएगा? बट एस्पेक्ट तो हम यहीं से देखेंगे ना इसका। अच्छा, एस्पेक्ट तो हम इसी चार्ट से देखते हैं, एस्पेक्ट भाव चलित से नहीं देखते। ओके। तो 2024 मार्च के आसपास ही शादी हो पाएगी मून की दशा में प्रोबेबली। नहीं, वीनस का पीरियड में भी हो सकती है, क्योंकि वीनस जो है वो सॉरी। लेकिन सर जुपिटर तब तक ना फर्स्ट लग्न में नहीं आएगा तब तक। किसमें? जुपिटर को लग्न में आना जरूरी है ना दशा अपनी ट्रांजिट में, तभी तो उसके ऊपर कृपा होगी। नहीं, अभी जुपिटर यहाँ पर चल रहा है। हाँ तो सर मार्च 22 तक यहाँ चलेगा। 3 साल पूरे कवर करके तब फर्स्ट में आएगा, तब बात बनेगी। नहीं, मार्च 23 में यहाँ आ जाएगा 5th हाउस में, तो उस टाइम करा सकता है, 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। ओके। जॉब और मैरिज दोनों आसपास ही हो जाएगी। जॉब और मैरिज दोनों जल्दी हो जाएगा उसका। अरे जॉब तो अभी हो जाएगा ना इसी साल। हाँ, इसी साल हो जाएगा। जॉब तो इसी साल हो जाएगा, मैरिज थोड़ा लेट है। ठीक है सर। और इसका भी जैसे वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है 8th हाउस में, तो इसकी भी जब लव मैरिज टाइप की पॉसिबिलिटी है। और कहाँ पर होगी इसकी जॉब? कहाँ से, मतलब जॉब से रिलेटेड होगा लड़की या कहीं बाहर से मिलेगी? अब देखिए आप कि 10th हाउस का कोई एसोसिएशन है या नहीं है। इसका लॉर्ड मरकरी है, इसका मार्स है और इसका सैटर्न है, तो कहीं एसोसिएशन नहीं है, तो इसका मतलब जॉब से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो इसका अभी हो सकता है कहीं कनेक्शन इसका? वीनस मार्स है तो ऐसे लोगों का तो रहता ही है ना। हाँ, वो पॉसिबिलिटी तो है सर। लेकिन हमने तो सर लव मैरिज के लिए तो 5th और 7th का एसोसिएशन होना चाहिए ना। नहीं, 5th और 7th का तो होना ही चाहिए, बट जब भी जैसे वीनस मार्स का जैसे कॉम्बिनेशन है 8th हाउस में, 8th हाउस हमारा है ही बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ वगैरह का, और वीनस मार्स तो हमें सेंसुअल प्लेजर्स को इंक्रीज ही करता है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है ऐसे लोगों की, कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो रहता ही है। सर या हम ऐसे देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ प्लैनेट्स में भी मार्स और मरकरी पास हैं। मार्स और मरकरी कितना है? 22 है। 10 डिग्रीज के विदिन है ना, तो नहीं, बहुत डिफरेंस है, 8 डिग्री है मार्स और मरकरी। बट ये सारे प्लैनेट कंबस्ट होने से ना, ये 3 प्लैनेट ये स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और बहुत नजदीक हैं सन के, तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। बट ये है कि जैसे नॉर्मल पहले का तो ये था कि वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन इसका ये है कि करेगा और ठीक ठाक करेगा बस, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट सेकंड मैरिज का हो सकता है इसमें। हाँ जी, सेकंड मैरिज। नहीं, सेकंड मैरिज आपने कैसे देखा? हाँ सर, 8th हाउस में ही वीनस और मार्स। नहीं, इट्स नॉट इंडिकेशन ऑफ सेकंड मैरिज, इट्स ओनली इंडिकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, मैरिटल तो मैरिज तो भी हुई नहीं है ना, प्री मैरिटल अफेयर्स। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप्स। So Venus Mars is not only pre-marital but after marital also. और एफ्लिक्टेड है, इस पे जुपिटर वगैरह का कोई वो नहीं है एक्चुअली। मैं हम यही कह सकते हैं कि वीनस और इसका एक्सचेंज है, तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है थोड़ा सा। और ये वो बन रहा है इसका विपरीत राजयोग, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? Sir, downfall of someone will cause him to rise. Downfall of some, not one person, but a person from opposition. So maybe जैसे शादी वादी होती है तो इन लॉज के यहाँ से हो सकता है कि बहुत पैसा वैसा मिल जाए।
Uncle, just remind us of Vipreet Rajyog, please. Can you recap it? Vipreet Rajyog is when there is an association of the Lord of 6, 8, 12 houses. Either of at least out of these 3 houses, there should be an association of 2 houses. तो यहाँ पर जो 12th house का Lord is Mars and 6th house Lord is Venus. So Mars and Venus both are together. So this forms the Vipreet Rajyog. Or Vipreet Rajyog is not like other yogas. It's entirely different from other yogas. और इसका जो basic principle ये है कि when 2 negative houses Lord they combine, so they cancel the significations of each other. And once they cancel the significations of each other, because they have the negative significations. Negative significations जब cancel होते हैं, तो in the process the native gains actually. और gain भी होता है इस योगा में because of the death or downfall of a friend or your own person or a person from the opponent or enemy you can say actually. तो अगर ये association 6, 8, 12 के lord का अगर त्रिक हाउस में ही बनता है तो gain is because of the death or downfall of a opponent, person from the opposite party. और अगर यही association अच्छे houses में होता है then death or sorry gain is because of the death or downfall of the own person. तो ये difference होता है. और तीसरा ये होता है कि जो इसके gains होते हैं विपरीत राज योगा के, they are not sustainable for a long time. तो मिलेंगे आपको short time के लिए और बहुत लंबे टाइम तक आप उनको सस्टेन नहीं कर सकते. So that is the difference with of this विपरीत राजयोग. Got it. सर इनका तो जैसा लगन के साथ रिलेट है तो हाँ तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा. हाँ डायरेक्ट बेनिफिट होगा बिल्कुल. तो ऐसे में जैसे मान लीजिए कोई इन लॉज हैं या कुछ और कोई है कोई अपोनेंट वाला तो उसको मिल सकते हैं. ठीक है सर. चलिए, any other question? Thank you sir. Okay, then we will continue with this. और आप लोग भेजते रहिए अपना हॉरोस्कोप. अभी तो है मेरे पास, but still you can keep on sending. Thank you, sir. Okay, then. Thank you so much. Thank you. Bye. प्रणाम सर. प्रणाम. नमस्कार.